Welcome. The next topic we are discussing is alcoholic liver disease. What happens in alcoholic liver disease is to develop alcoholic liver disease, a certain amount of alcohol must has to be taken, and that quantity is different in males and females because of the levels of the enzymes are different in males and females to digest the alcohol. अगर कोई मेल more than 3 drinks per day लेता है, that is almost equal to 210 grams of alcohol per week. और अगर फीमेल मोर देन 2 drinks पर डे लेती है, दैट इक्वल्स टू समवेयर अराउंड मोर देन 140 grams ऑफ अल्कोहल पर वीक, then there is a chance that the patient white will develop the alcoholic liver disease. Alcoholic liver disease doesn't mean cirrhosis. Cirrhosis होने के लिए तो बहुत लॉन्ग एक्सपोजर होना होगा अल्कोहल का. अगर फीमेल्स मेल्स के लिए बात करें तो मेल्स के लिए अगर कोई मेल 40 to 80 grams ऑफ अल्कोहल पर डे लेता है फॉर एटलीस्ट 10 years, then there is the patient will develop cirrhosis. और फीमेल्स में the range is less. 20 to 40 grams of alcohol per day for a female for 10 years can lead to cirrhosis. Now when it comes to alcoholic liver disease, आप देखिए, दिस डायग्राम विल गिव यू अ गुड आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ alcoholic liver diseases. This is the normal healthy liver. Those who takes alcohol, there is a certain changes that will happen in the liver. जो सबसे पहला चेंज होता है दैट देर इज गोइंग टू बी एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट इन द लीवर, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एल्कोहलिक फैटी लीवर, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टियाटोसिस. अब ये वाली जो स्टेज होती है, दिस इज बेसिकली इज अ रिवर्सिबल स्टेज. अगर यहाँ पे पेशेंट एल्कोहल पीना बंद कर देगा तो वापस रिटर्न हो सकता है नॉर्मल की तरफ. इज अ रिवर्सिबल वन. नाउ दिस स्टियाटोसिस दैट इज जस्ट अ फैटी लीवर. बेसिकली अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर हुआ, इसलिए अल्कोहलिक फैटी लीवर. ये आपको और हम सबको भी हो सकता है. जो लोग अल्कोहल नहीं भी पीते उनके अंदर भी फैटी लीवर होता है, दैट इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर. बट हियर इट इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल, सो इट इज अल्कोहलिक फैटी लीवर. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टियाटोसिस. नाउ अगर किसी को फैटी लीवर होता है, दैट फैटी लीवर is having a chance of 10 to 35% that can have the inflammation also. अगर किसी को फैटी लीवर मतलब स्टियाटोसिस के साथ में हिपेटोसाइट्स के अंदर इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज स्टियोहेपेटाइटिस, और ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कोहलिक हेपेटाइटिस. स्टियोहेपेटाइटिस और द एल्कोहलिक हेपेटाइटिस. एंड अगर इस स्टेज में भी आदमी पहुंच गया और मतलब मान लीजिए किसी को एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया और वो पेशेंट एल्कोहल एब्स्टिनेंस में चला जाता है, एल्कोहल पीना बंद कर देता है, तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट ही विल रिटर्न from the alcoholic hepatitis to steatosis, and then from steatosis then he will return back to normal. It is possible. But अगर किसी को alcoholic hepatitis है, then there are two possibilities. Either the patient can land up in the cirrhosis, or the patient can land up in hepatocellular carcinoma. और अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाती है, that is going to be irreversible, and the cirrhosis anytime can convert into hepatocellular carcinoma. Even if someone is having steatosis without having hepatitis, he can develop cirrhosis. The chances of having the hepatocellular carcinoma is somewhere around 2 to 8%. So what are the various stages? If we see what are the various stages of alcoholic liver disease, we can say the initially that is going to be the fatty liver, that is steatosis. Then there is going to be alcoholic hepatitis, that is steatohepatitis. Then there are two possibilities that this steatohepatitis will convert into cirrhosis, and the cirrhosis will convert into hepatocellular carcinoma, or the steatohepatitis then can directly convert into hepatocellular carcinoma. सो अगर हम इसको स्टेज वाइज डिवाइड करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहली इनिशियल स्टेज है फैटी लीवर, देन वी हैव द एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और उसके बाद में हो रहा है सीरोसिस. और वो सीरोसिस हो सकता है कि हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाए. बट अभी के लिए हमारे पास ये 3 स्टेजेस है. इस 3 के बेसिस पर हम पूरा एल्कोहलिक लिवर डिजीज को डिस्कस करने वाले. अब एल्कोहल व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर लीवर. एल्कोहल की वजह से क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं. एल्कोहल की वजह से ग्लूटाथायोन कम हो जाता है. ग्लूटाथाइन जो होता है, रिड्यूस ग्लूटाथाइन जो होता है, वो फ्री रेडिकल इंजरी से बचाता है. जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके अंदर ग्लूटाथाइन कम बनता है. ग्लूटाथाइन कम बनेगा तो फ्री रेडिकल इंजरीज बढ़ने लग जाएगी. एनएडी एनएडीएच और एनएडी का रेशो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल इंजरीज बढ़ने लग जाती है. अल्कोहल की वजह से गट की परमेबिलिटी भी बढ़ने लग जाती है. इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की परमेबिलिटी बढ़ने लग जाती है. उसकी वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब होके दे विल कम इनटू द ब्लड, एंड दैट अल्टीमेटली विल रीच टू द लीवर. सो अल्कोहल की वजह से गट की परमेबिलिटी बढ़ गई, जिससे कि गट के जो टॉक्सिन्स है वो एब्जॉर्ब होकर लीवर की तरफ आने लग गए, एंड वंस दे विल कम टूवर्ड्स द लीवर दैट कैन लीड टू द इन्फ्लामेशन इन द लीवर. That can lead to damage to the hepatocyte or the inflammation to the liver.
तो दीज आर सम ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द अल्कोहल की ग्लूटाथाइन कम हो जाता है, एनएडीएच एनएडी रेशियो बढ़ जाता है, गट की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे इंटेस्टाइन के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में आके डैमेज करने लग जाते हैं. This diagram you may have discussed in the anatomy as well as in the pathology also about the when we talk about the portal triad. What is the meaning of portal triad is, look at this diagram that will give you a better idea. देखिए दो चीजें जो है वो लीवर के अंदर ब्लड लेके जा रही है. वन इज द पोर्टल वेन एंड सेकंड इज द हिपेटिक आर्टरी. जब ये पोर्टल और एक चीज जो बाइल को लेके बाहर आ रही है दैट इज द बाइल डक्ट. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब ये पोर्टल वेन अंदर पहुंच जाती है, पोर्टल वेन अंदर पहुंच जाती है तो ये छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे पोर्टल वेन्यूल्स. जब हिपेटिक आर्टरी अंदर बाइफर्केट हो जाएगी, छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द हिपेटिक आर्टेरियोल्स. एंड देर इज वन थिंग विच इज कमिंग आउट इज द बाइल. सो बेसिकली लीवर के अंदर जो फ्लो चल रहा है, दो चीजें अंदर जा रही है. एक जा रहा है पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड जा रहा है, दूसरा हिपेटिक आर्टरी के थ्रू जा रहा है, और बाइल जो है वो बिलियरी सिस्टम से बाहर आ रहा है. और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस ट्रायड इज रेफर्ड एज द हिपेटिक ट्रायड. दिस द पोर्टल ट्रायड. द पोर्टल ट्रायड. तो पोर्टल ट्रायड में तीन चीजें हो गई, पोर्टल वेन्यूल्स, हिपेटिक आर्टेरियोल्स एंड द बिलियरी डक्ट. If you see the same thing in the microscopic image, for example, these hexagonal cells are the hepatocytes. जो hepatocytes होते हैं उनके बीच में we are having this triad, this is the portal triad which is having three things. It's having three things. One, that is going to be the bile duct, there is going to be the hepatic arteriole, and there is going to be the portal venule. These are the three things that is going to be there in the triad. और hepatocyte के center में we are having the central venule. This central venule will ultimately will make the hepatic vein. मतलब कि ये जितना भी ब्लड अंदर जा रहा है, ये सारा का सारा ब्लड अल्टीमेटली ये सब एक्यूमुलेट होगा एंड दे आर गोइंग टू मेक द हेपेटिक वेन. सो वो जितने भी सेंट्रल लोब्यू वेन्यूल्स हैं वो मिलके बनाएंगे हेपेटिक वेन. नाउ if I tell you the same thing in this diagram, what you can see is लीवर के अंदर दो चीजें जाती है, राइट. दो चीजें जो जा रही है, एक तो जा रहा है पोर्टल वेन और दूसरा जा रहा है हिपेटिक आर्टरी. तो हिपेटिक आर्टरी जब लीवर के अंदर पहुंच जाएगा उसको बोलेंगे हिपेटिक आर्टेरियोल, और पोर्टल वेन जब अंदर पहुंच जाएगा उसको बोलेंगे पोर्टल वेन्यूल. ये दोनों आगे जाएंगे एंड दे आर गोइंग एंड दे आर मर्जिंग, दे आर टेकिंग द ब्लड एंड अल्टीमेटली दे विल मर्ज एंड दे विल एंड अप इन द सेंट्रल वेन्यूल. और ये सेंट्रल वेन्यूल जो है आगे चल के बनाएगा हिपेटिक वेन. जितने भी सेंट्रल वेन्यूल है वो सब आगे चल के बनाएंगे हिपेटिक वेन. और एक चीज जो लीवर से बाहर की तरफ आ रही है दैट इज गोइंग टू बी द बाइल. तो हियर इज द बाइल, दिस इज द बाइल डक्टाइल दैट इज कमिंग आउट. सो कुछ इस तरीके का फ्लो चलता रहता है. हिपेटोसाइट में जो सेंट्रल वेन्यूल होता है, ये जो सेंट्रल वेन्यूल है, हियर इज द सेंट्रल वेन्यूल, हियर इज द अनदर सेंट्रल वेन्यूल. दो सेंट्रल वेन्यूल के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज हिपेटिक एसिनस. दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज हिपेटिक एसिनस. तो अल्कोहल की वजह से हिपेटिक एसिनस में डैमेज आने लग जाता है. और अगर आप हिपेटिक एसिनस को 3 जोन में डिवाइड करेंगे तो ये जो सबसे जो सेंट्रल वेन्यूल के जो पास वाला जोन है दैट इज द थर्ड जोन, दैट इज द सेंट्रिलोब्यूलर जोन. सबसे ज़्यादा अल्कोहल की वजह से इस एरिया में डैमेज होता है. द मैक्सिमम डैमेज ऑफ अल्कोहल इज इन द सेंट्रिलोब्यूलर जोन. सेंट्रिलोब्यूलर जोन में होता है, सेंट्रल वेन्यूल के पास वाले एरिया में होता है. सो this is the basic idea, basic structure of the hepatocytes, the portal triad. Now अब हमने ऑलरेडी बात की कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज को हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया. जो लोग अल्कोहल लेते हैं इनिशियली देयर इज गोइंग टू बी फैटी लीवर दैट इज कॉल्ड एज स्टियाटोसिस. दैट फैटी लीवर विल कन्वर्ट इनटू द स्टिया हेपेटाइटिस दैट इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एंड दैट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस अल्टीमेटली कैन कन्वर्ट इनटू सीरोसिस. तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस हो गए अल्कोहलिक लिवर डिजीज की. फैटी लीवर में तो कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं आएंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी लीवर वाला पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा. ज़्यादा से ज़्यादा उसको राइट क्वाड्रेंट में थोड़ा सा पेन हो सकता है. देयर कैन बी राइट अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट और समटाइम्स देयर कैन बी नोजिया. When the alcoholic hepatitis will develop, this can be symptomatic or it can be symptomatic also. And most of the time alcoholic hepatitis वाले patient को symptoms होंगे. The patient will have nausea, hepatomegaly, jaundice. There will be features of portal hypertension, encephalopathy. We will discuss portal hypertension, encephalopathy in detail when we will discuss about the in the further discussion. जहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन को हम अलग से पूरा डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसके बारे में और पढ़ेंगे. पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब है कि पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाना, राइट. बिकॉज कि लीवर के अंदर कंजेशन हो गया. क्योंकि लीवर के अंदर अगर कंजेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा. लीवर के अंदर अगर कंजेशन हो गया कुछ इस तरीके से,
फॉर एग्जाम्पल हियर इज द इन्फ्लामेशन इन द लीवर, तो ये जो पोर्टल वेन से जो ब्लड आ रहा है वो इतना आसानी से आ नहीं पाएगा, क्योंकि पोर्टल वेन से ब्लड आगे जा नहीं पाएगा, तो पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाएगा, बैक प्रेशर आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द पोर्टल हाइपरटेंशन। तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की वजह से देयर कैन बी पोर्टल हाइपरटेंशन कैन बी देयर। इन द माइक्रोस्कोपिक वी आर गोइंग टू हैव द मेलेरी डैंक बॉडीज। ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहा है, दीज आर द मेलेरी डैंक बॉडीज। So we can have the Mallory Dank bodies with the eosinophilic inclusions, the Mallory Dank bodies. So when there is alcoholic hepatitis, the patient will have nausea, hepatomegaly, jaundice, feature of portal hypertension can be there, such as the esophageal varices, the splenomegaly can be there, and ultimately the patient will end up in cirrhosis. जैसे ही cirrhosis हो जाएगा, the liver is going to be firm, hard, that is called as the Linux cirrhosis, and the patient is going to have the ascites, esophageal varices, encephalopathy, hepatocellular. This cirrhosis can convert into hepatocellular carcinoma also, and it is going to have a Hobnell pattern. That is just a biopsy finding. So basically when comes to alcoholic liver disease, we are going to have the 3 stages. Fatty liver में तो ज़्यादा कोई symptom नहीं होते हैं. Then the alcoholic hepatitis में patient will have the jaundice, will have the hepatomegaly, portal hypertension के feature आने लग जाएंगे, and ultimately the patient will end up in cirrhosis. अगर पेशेंट को ये 2 स्टेज तक है ना यार, फैटी लीवर और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यहाँ से तो पेशेंट रिवर्स कर सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन वंस देर इज अ सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, वी कांट रिवर्स इट. इट्स अ इरिवर्सिबल थिंग. इफ देर इज अ लेनेक्स सिरोसिस इज देयर, इट इज अ इरिवर्सिबल थिंग. नाउ इफ दोज हु आर एल्कोहलिक, जो लोग एल्कोहलिक होते हैं उनको एल्कोहल की वजह से एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है. हेपेटाइटिस हो सकता है मीन्स दे विल हैव जॉन्डिस. अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है जो कि क्रॉनिक एल्कोहलिक है, उसको जॉन्डिस हो रखा है, उसका जब हमने पेरिफेरल ब्लड फिल्म देखा, पीबीएफ किया, तो आरबीसीज जो थे पीबीएफ के अंदर, दे वर लुकिंग वेरी पिक्यूलियर, समथिंग लाइक दिस. आरबीसीज जो थे वो कुछ इस तरीके के दिख रहे थे. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज आरबीसीज? आपने पैथो में भी पढ़ा होगा, ऐसा लगता है छोटे छोटे स्पाइक्स निकले हुए हैं आरबीसी के. दिस स्मॉल स्मॉल स्पाइक्स विच आर देयर, दिस इज कॉल्ड एज द स्पर सेल्स. सो जो लोग एल्कोहलिक होते हैं उनके आरबीसी में डैमेज हो जाता है, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज द स्पर सेल्स, एंड दे कैन हैव द इंक्रीज इन द ट्राइग्लिसराइड ऑल्सो. सो अगर अल्कोहल की वजह से ये ट्राइड देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस है, स्पर्ट सेल्स दिख रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज द जीव सिंड्रोम. When it comes to the alcoholic liver disease, the investigation that we can do is we can check the SGOT SGPT ratio. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि एल्कोहलिक लिवर डिजीज वाले पेशेंट में SGOT जो होता है बहुत बढ़ जाता है, और ये रेशियो जो आएगा मोर देन 2 आएगा. Alcoholic liver disease will have increase in the GGT. There is going to be increase in the MCV. This patient will have the macrocytic anemia. MCV बढ़ा हुआ मिल सकता है. इन पेशेंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन भी बढ़ा हुआ मिलता है. ट्रांसफेरिन जो होता है बहुत सारे अलग अलग टाइप का होता है, उसमें से एक ट्रांसफेरिन होता है कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट. तो ये बहुत ही सेंसिटिव मार्कर होता है. अगर मान लीजिए एक पेशेंट आ रहा है आपके पास में, वो आपको ये नहीं बता रहा कि वो एल्कोहलिक है, वो छिपा रहा है. आपने उसका सीबीसी कराया, उसका एलएफटी कराया, एलएफटी में एसजीओटी बढ़ा आ रहा है, सीबीसी में एमसीवी देखने को बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, मैक्रोसाइट्स दिख रहे हैं, और हमें इसका कोई कॉज नहीं मिल रहा है, एमसीवी का कोई एमसीवी बड़े होने का कोई कॉज नहीं मिल रहा है. देन व्हाट वी कैन डू इज, इफ वी जस्ट वांट टू सी दैट क्रॉनिक एथेनॉल अब्यूज हुआ है या नहीं हुआ है, वी कैन चेक द कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन. जो लोग क्रॉनिक एल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरिन बढ़ा हुआ मिलता है. एल्कोहलिक लीवर डिजीज के पेशेंट में सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिल सकता है. लीवर डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे, दे आर नॉट गेटिंग एक्टिवेटेड, सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम कैन बी ऑन द हायर साइड. एल्बुमिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, तो एल्बुमिन कैन बी ऑन द लोअर साइड. सो दीज आर द सम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग दैट कैन बी देयर. अब जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट से पहले हमें एक स्कोर कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर, और द मेड्रेस डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में डीएफ भी लिखते हैं. डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर, डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है 4.6 इंटू द पीटी ऑफ द पेशेंट, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ द पेशेंट माइनस कंट्रोल प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्लस टोटल बिलिरुबिन. तो जिस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, और बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर 32 से ज़्यादा है या नहीं है. तो उसके बेसिस में हमको ट्रीटमेंट में वी विल अंडरस्टैंड दैट कि अगर मान लीजिए एक पेशेंट आया, उसको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस है. देखिए, एल्कोहलिक लीवर डिजीज़ की 3 स्टेजेस हैं, फैटी लीवर, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस और सीरोसिस. फैटी लीवर में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको मोटिवेट करना है कि भाई तू एल्कोहल पीना बंद कर दे, तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी. और मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी लीवर वाला पेशेंट आपके पास आएगा ही नहीं. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको सिम्टम ही नहीं है. अब बात करते हैं एल्कोहलिक हेपेटाइटिस की. जो लोग एल्कोहल ले रहे हैं, अगर उनको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाता है, फैटी लीवर प्रोग्रेस करके हेपेटाइटिस हो जाता है, तो पेशेंट को जॉन्डिस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, उस केस में वो आपके पास आएगा.
तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में हमारे को इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टीरॉयड देना है या नहीं देना है, वो डिपेंड करता है कि डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर जो है वो मोर देन 32 है या नहीं है। ये हम आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्कोहलिक हेपेटाइटिस का जब हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे ये डीएफ की वैल्यू काम आएगी कि डीएफ का स्कोर मोर देन 32 है या नहीं है। अगर डीएफ का स्कोर मोर देन 32 होता है देन वी कैन स्टार्ट स्टीरॉयड। अगर आप स्टीरॉयड नहीं देना चाहते हैं कि पेशेंट को से फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, हम स्टीरॉयड नहीं दे पा रहे और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी है, डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर मोर देन 32 आ रहा है, स्टीरॉयड हम दे नहीं पा रहे, देन वी कैन गिव द अल्टरनेट दैट इज पेंटॉक्सीफाइलिन। तो फिर हम फेंटॉक्सीफाइलिन भी दे सकते हैं, बट फर्स्ट चॉइस तो स्टीरॉयड ही रहता है। अगर स्टीरॉयड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसी दूसरी पैथोलॉजी की वजह से देन वी कैन गो फॉर पेंटॉक्सीफाइलिन। तो हम एल्कोहलिक हेपेटाइटिस वाले पेशेंट में डीएफ कैलकुलेट करते हैं जिससे हमारे को ट्रीटमेंट में ये पता लग जाता है कि स्टीरॉयड देना है या नहीं देना है। हम एल्कोहलिक लीवर डिजीज में वी कैन कैलकुलेट द मेल्ड स्कोर दैट इज मॉडल फॉर एंड स्टेज लीवर डिजीज। इसके अंदर 3 कंपोनेंट चेक करते हैं। द न्यूमोनिक इज सीबीआई, एस एस सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिनिन, द सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू, बी स्टैंड्स फॉर बिलिरुबिन वैल्यू एंड आई स्टैंड्स फॉर आईएनआर। इन तीनों की मदद से वी कैलकुलेट द मेल्ड स्कोर, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प अस वेदर टू गिव द स्टीरॉयड ऑल्सो। अगर डीएफ स्कोर से करना है तो डीएफ से कर लो, अगर मेल्ड स्कोर 21 आ रहा है तो भी हम स्टीरॉयड चालू कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज में हमको अल्कोहल का एब्सटिनेंस करवाना पड़ेगा, अल्कोहल छुड़वाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी कैन यूज नाल्ट्रेक्सोन। अदरवाइज तो वी हैव टू गिव द सपोर्टिव मैनेजमेंट। एंड अगर एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में डीएफ जो है मोर देन 32 आ रहा है, गो फॉर स्टीरॉयड। लेकिन वंस देर इज अ सीरोसिस, अगर सीरोसिस हो गया फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बार सीरोसिस हो गया मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब केवल एक ही चीज की जा सकती है दैट इज लीवर ट्रांसप्लांटेशन, बिकॉज दैट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो एल्कोहलिक लीवर डिजीज इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। जो लोग अल्कोहल पियेंगे सबसे पहले फैटी लीवर होगा, उसके बाद में उसमें हेपेटाइटिस होगा और उसके बाद में सीरोसिस होगा, और सीरोसिस बाद में कन्वर्ट हो सकता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में भी। तो मेनली होने के लिए 3 स्टेजेस है। फैटी लीवर में तो मोस्टली ये सिम्टोमेटिक होता है। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस जिसको स्टीओ हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, उसके अंदर जॉन्डिस, नोजिया, हेपेटोमेगली, पोर्टल हाइपरटेंशन के फीचर आते हैं। और सीरोसिस अगर हो जाएगा तो वील हैव द स्टिग्मेटा ऑफ द सीरोसिस दैट इज एसाइटिस, इसोफेजियल वेराइसिस, encephalopathy can convert into carcinoma, hobnel pattern, that things will be there and it's a irreversible process. Then we have discussed कि steroid देना है नहीं देना है, this is an important MCQ in the alcoholic hepatitis, whether to give the steroid or not, that will depend कि DF जो है more than 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर more than 32 आ रहा है go for steroid, अगर नहीं आ रहा है तो don't start steroid, just give the supportive management, right, and motivate the patient to stop the alcohol, because फैटी लीवर और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस तक तो रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरोसिस हो गया इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिर तो हमें को लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ेगा, राइट। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द एल्कोहलिक लीवर डिसीज। थैंक यू।